محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا، اور میں فن پر مگر ناز یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تو بھائی کیا بات، آپ نے تو آج محفل جس طرح شروع کی ہے، میرا خیال ہے کل غوث پاک کی جو ہے جو ذکر ہوا، جو ان کا جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے کہا، میں تو بالکل خاموش ہو گئی تھی واقعی۔ اللہ کا کرم ہے آپ پر اور دعائیں ہیں آپ کے ساتھ الحمدللہ۔ رمضان مبارک کی برکتیں اور رحمتیں بھی شامل ہیں اس پروگرام میں، اور ہماری نیت کا جو عمل دخل ہے وہ بھی بالکل اس میں شامل ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ یہ پروگرام محفل سجاتی ہیں، اللہ پاک اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، آج 8 جون سن 2016 رمضان مبارک کی 2 تاریخ ہجری 1433 ہجری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ اس رب کا حکم ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو، مجھ سے مانگو۔ شروعات نہیں کر پاتے ہم اپنی، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، زندگی نام خدا کرتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، زندگی نام خدا کرتے ہیں، انتہا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، زندگی نام خدا کرتے ہیں، انتہا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آج سے ابتدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدا بنیاد شروعات۔ کس چیز کی ابتدا کرنی چاہیے؟ کل ہم نے کچھ باتیں کی، کچھ ذکر کیا۔ یہ بات ذکر کرنے کا کہ مہمان نوازی، کہ بھائی چلے آج سے ابتدا کرتے ہیں، سوچنے کی شروع تو کرتے ہیں۔ رب کو جاننے کی، رب کو پہچاننے کی، اپنے اندر وہ ایک ایسی کوشش کی دعا کہ مالک میرے قدم بڑھیں جو تو نے سکھایا ہے، جو تو نے بتایا ہے۔ جب ہم اکثر میں بات کرتی ہوں، جب لوگ مجھ سے ذکر کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کی شرکت کا بھی بہت شکریہ ساتھ ساتھ۔ اکثر حسان مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں کہ تم کون سی دعائیں پڑھتی ہو؟ اب مجھے اس وقت مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ میں کون سی دعائیں پڑھتی ہوں؟ جو ریگولر تسبیحات ہیں جو بتائی جاتی ہیں وہ تو ظاہر ہم پڑھتے ہیں۔ درود شریف کا بہت ذکر ہوتا ہے، درود شریف بہت پڑھتے ہیں۔ اس وقت میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں اس وقت کہ کافی یہاں پر لوگ استغفار کی تسبیح پڑھے۔ کون کون پڑھے ہوئے استغفار کی تسبیح؟ یہ دیکھیں ماشاءاللہ استغفار کی۔ اب یہ ریگولر ہماری عادات میں شامل ہے۔ ابھی میں پوچھوں درود شریف کی تسبیح کون پڑھ رہا ہے؟ بتائیں جی درود شریف کی تسبیح کون کون پڑھ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے کلچر، ہمارے ریلیجس جو ماحول جو گھروں میں بتایا جاتا ہے، یہ ہماری عادات ہے۔ اب میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں بہت ہی خوبصورت شاٹ، کیا بات ہے سہیل بھائی آپ کا، کیا بات ہے ہمارے جب والے بھائی، چاہ آپ اکثر۔ اچھا میری کچھ گھر کی عادت ہے حسان کہ ہم استخارے کی دعا بڑی ہمارے ہاں کچھ پڑھی جاتی ہے۔ اب استخارے کی دیگر جو ہے روایات کے حوالے سے دیگر اس کی عبادات ہیں۔ استخارے کی دعا کا جو ترجمہ ہے کوئی مجھے بتائے گا ادھر آڈینس سے بیٹھے ہوئے؟ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نستخیرک بعلمک وقدرتک۔ جو پوری آیت ہے اس کی شروع کی پہلی یا دوسری لائن کا ترجمہ مجھے کوئی بتائے گا کہ اس ترجمے میں کیا کہہ رہا ہے رب، یا ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟
पक्की बात है? हाँ बताइए, पहली जो लाइन है इस पे क्या है? ये मफहूम है, ये मफहूम है, ये मफहूम है, हाँ मफहूम है। मैं तर्जुमे की बात कर, लाइन जो पहली लाइन, या अल्लाह तू सब जानता है मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह तुझे सब पता है मुझे कुछ नहीं पता, बेशक मेरे हक में क्या बेहतर है ये तू जानता है, मेरे दीन दुनिया और आखिरत के लिए क्या बेहतर है। वही मकसद था आपका भी, वही मतलब। तो हम जब दुआ पढ़े होते हैं, देखिए ये सब, अब मुझे ईमानदारी से, रोजे में है रोजे में नहीं है इसके आप जवाब दे खुद हैं, मुझे ये बताइए कि आप में से ईमानदारी के साथ अल्लाह का नाम लिया है, किस किस ने अब तक इस्तिखारे की दुआ पढ़ी है? हमेशा इस्तिखारे की दुआ तो पढ़ते हैं ना बहुत सारे लोग, बच्चे, बस आप लोगों ने इस्तिखारे की दुआ नहीं पढ़ी? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, मतलब मुताल्ला किया इस्तिखारे की दुआ। अब देखें, अब ये गिनती के कुछ 4-5 लोगों ने ये दुआ पढ़ी, अगर हम उसका तर्जुमा पढ़ें तो मैं आप लोगों को दावे से कह सकती हूँ कि आज से सब पढ़ना शुरू कर देंगे, आदत बन जाएगी आपकी, आप नमाज इशा के बाद वैसे ही पढ़ना शुरू हो जाएं। अपनी आदत में वो चीजें हम शामिल करें, क्योंकि देखिए ये बात क्या हम मानते नहीं है कि अल्लाह, ये तो एक बड़ी सिंपल सी है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि अल्लाह ताला सब जानता है। बेशक बेशक रब हमारा भला किसमें उससे बेहतर कौन जानता है। कभी कभी बज़ाहिर चीजें हमें मुश्किल और दुश्वार नजर आ रही होती हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन हम अल्लाह पे छोड़ते नहीं है, हमारा सबसे बड़ी हमारा मसला ही है, हम अल्लाह पर छोड़ते नहीं। अल्लाह ताला तुझ पर छोड़ दिया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, रब को अपना वकील कर दें और उसकी ताकत देखें, उसके अंदर उसके ये करने के बाद अगर आपके अंदर ताकत आ जाए है हसन, तो फिर आपको जिंदगी में कोई चीज गम ही नहीं लगती। अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि उसके बंदे जब उससे मांगते हैं उसको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हम ज़ाती तौर पर अपनी दुनियावी जिंदगी में देखते हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो हमें वो अता करता है वो जो हमारे लिए बेहतर होता है। और सुभान अल्लाह, और जब आपको वो अता हो जाता है तब हम उसको मांगने की जो हमारी एक कोशिश थी, मेहनत थी, दुआओं का सिलसिला था, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह कितनी दुआओं के बाद ये हासिल हुआ है, अल्लाह कितनी दुआओं के बाद। हम लोग यकीन मानिए, बखुद अपनी रोजी पर मैं इस वक्त हूँ और रमजान जैसे महीना रब ने मुझे दिया, मैं कहती हूँ रब का पता नहीं कितना शुक्र है कि आप लोगों के साथ ही ट्रांसमिशन करने को मिलती है। दुआ करते हैं कि ट्रांसमिशन मिले करने को, ताकि आप लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात करने का मौका मिले, कुछ आपकी सुने कुछ अपनी कहें। आइए इब्तिदा करते हैं, आइए आगाज करते हैं, आगाज उस सोच की जिसमें हम रब ताला जो अपने बंदे से कह रहा है उसको जानने की, ना सिर्फ पढ़ने की, उसको जानने की कोशिश तो करें। तू सब जानता है मैं कुछ नहीं जानता। ये ट्रांसमिशन आगे कहां जाएगी ये भी रब जानता है, इसमें कितनी कामयाबी होगी ये भी रब जानता है। आगे आगे सिलसिला मोहब्बत का कैसे परवान सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद वाले वसल्लम, इस सब के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए। रमजान इश्क है, अभी आता है। रमजान इश्क है। ख़वातीन हज़रात, A+A TV पर हमारी फैमिली आज से जमा हो रही है। फरहान अली वारिस ने और जवेरिया सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। हम बड़ी मजेदार बातें कर रहे थे, वैसे अभी आप सुन रहे थे ना फरहान, जवेरिया सलीम, हम लगते अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। कभी बड़ा मजा आता है ये बातें करके, ये जान के कि रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से क्या कह रहा है, अपने बनाने वाले जो अशरफुल मखलूकात बनाए हैं उससे परवरदिगार किस तरीके से और कितने प्यार से कह रहा है, ये बात हमें जानने की बड़ी जरूरत है। अच्छा, एक शख्स ने, अच्छा हमारी डॉक्टर उम्मे राहिल भी आ चुके हैं भाई, ये देखिए आज आसमान पे चली गई है। डॉक्टर उम्मे राहिल PhD डॉक्टर, हर्बलिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अच्छा, एक वाकया अमरीन इजाजत से, एक शख्स ने
हजरत बयजीद बुस्तामी से कहा कि हजरत मेरे बच्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम, मेरे बच्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम, बताइए क्या करूं? तो उन्होंने फरमाया घर जाकर देख के जिसका रिस्क तेरे जिम्मे है तो उसे घर से निकाल दे। कि घर जाके देखो, तुम्हें लगता है जिसका रिस्क तुम्हारे जिम्मे है उसको निकाल दो, और जिसे देखो तुम्हें लगे कि उसका रिस्क अल्लाह ताला पर है तो उसे घर में रहने दो। यहां बात सिर्फ रिस्क की नहीं है, बल्कि उस बुजुर्ग जात पर ईमान की है कि मैं और आप किसी के रिस्क का जरिया तो शायद बन सकते हैं, लेकिन देने वाली हमारी जात नहीं है। आप घर जाएं और आप ये देखें, या आप किसी के पास अपने दफ्तर जाएं ये देखें, या चले कहीं ना छोड़े दूर ना जाएं, दस्तरखान पे बैठ जाएं। आप क्या समझ रहे हैं A+ ATV या हमारे स्पॉन्सर्स ने रिस्क दिया है? ना ना ना, रिस्क देने वाली रात रब की है। हम सिर्फ कहीं ना कहीं वसीला या जरिया बन जाते हैं, और जरिया और वसीला बनने पे भी सवाब है। देखिए अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कहां कहां हमें जो है नवाजा हुआ है, बेशक, और हम जो है शुक्र नहीं अदा कर पाते। और नवाजने पर फल है, रिस्क इतने खूबसूरत। दुनिया में जाएं आप, कहां कहां जाते फरहान और आसान, हम किस किस खूबसूरत तरह के फल देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे फल। अच्छा, अब लीची कितने किस्में, आप खाली इधर फारिस पे खाली इधर एशिया साइड पे चले जाएं तो खाली लीची की किस्में। आम तरह तरह के आम हमारे यहाँ का जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, और जैसी मार्केट में आता है ठग करके गायब हो जाता है। ऐसे ही है, अमेरिका जाता है, दुबई जाता है, इन सारी जगहों पे जाता है।